नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेसन सेकंड, excerpt from the book Soul Lessons and Soul Purposes. Do not fear soul lessons, for there is nothing to be afraid of. They will liberate you from frustration and pain, not add more, nor will they restrict your freedom. In fact, their opposite will occur. The more you embrace your spiritual nature, the more freedom you will gain. You have already learned some of them, and you have been mastered others, and now expressing them as part of your purpose. There is no need to master all 22 lessons in this life, because the soul travels from one lifetime to the next with all past learning intact. Consciously or unconsciously, you have been working on these subjects for many incarnations, and you are progressing. Each sojourn on earth serves as a classroom. As you move up the learning curve, you come to all soul lessons at the perfect time, and no learning is ever lost. Although completely skipping lesson is not allowed, you have all the time in the universe to learn, as your gift from your great creator is free will. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Soul lesson second, excerpt from the book Soul Lessons and Soul Purposes. Do not fear soul lessons, for there is nothing to be afraid of. They will liberate you from frustration and pain, not add more, nor will they restrict your freedom. In fact, their opposite will occur. The more you embrace your spiritual nature, the more freedom you will gain. You have already learned some of them, and you have been mastered others, and now expressing them as part of your purpose. There is no need to master all 22 lessons in this life, because the soul travels from one lifetime to the next with all past learning intact. Consciously or unconsciously, you have been working on these subjects for many incarnations, and you are progressing. Each sojourn on earth serves as a classroom. As you move up the learning curve, you come to all soul lessons at the perfect time, and no learning is ever lost. Although completely skipping lesson is not allowed, you have all the time in the universe to learn, as your gift from your great creator is free will. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। आत्मा पाठ द्वितीय अध्याय, आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य के पुस्तक से कुछ अंश लिए गए हैं। हमें पत्री से बता रहे हैं, इसको हम ध्यान से सुनते हैं। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य। आत्मिक पाठ से डरो मत, क्योंकि डरने की कोई बात नहीं है। वे तुम्हें हताशा और बीज से मुक्त करेंगे और अधिक नहीं जोड़ेंगे। ना ही वह तुम्हारी सुंदरता को सीमित करेंगे, वस्तुतः उनका विपरीत घटित होगा। जितना अधिक आप अपने आध्यात्मिक स्वभाव को अपनाएंगे, उतनी अधिक स्वतंत्रता आपको प्राप्त होगी। आप उनमें से कुछ को पहले ही सीख चुके हैं, और आपने दूसरों पर भी महारत हासिल कर ली है, और अब उन्हें अपने उद्देश्य के सिर में व्यक्त कर रहे हैं। इस जीवन के सभी 22 पाठों में महारत हासिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा सभी पिछली सीखों के साथ एक जीवन में अगले जीवन तक यात्रा करती है। जानबूझकर या अनजाने में आप कई अवतारों से इन विषयों पर काम कर रहे हैं और प्रगति कर रहे हैं। जैसे जैसे आप सीखने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी और प्रत्येक प्रवास एक कक्षा के रूप में कार्य करता है। आप सभी आत्मा पाठों को सही समय पर सीखते हैं, और कोई भी सीख कमी खोती नहीं है। यद्यपि पाठ को पूरी तरह से छोड़ने की अनुमति नहीं है, आपके पास सीखने के लिए प्रमाण में पूरा समय है, क्योंकि आपके महानिर्माण में आपका उपहार स्वतंत्र इच्छा है। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं और थोड़ा सा विस्तार रूप में समझते हैं। आत्मा पाठ, इसको हम अच्छी तरह जानते हैं। इसके बारे में पिछले अध्याय में हम बात कर चुके हैं। फिर दोबारा पत्री से हमें आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य पुस्तक से कुछ अंश लेके हमें बता रहे हैं। आत्मिक पाठ से डरो मत। जो हम आत्मा हमारा अनुभव सीखती है, उससे डरना नहीं है। यहाँ पर बता रहे हैं, वे तुम्हें हताशा और बीज से मुक्त करेंगे। हमें हताश और बीज से मुक्त करेंगे और अधिक नहीं जोड़ेंगे।
ना ही वह तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमित करेंगे, हमारी स्वतंत्रता को वो बांधेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, कोई सीमित नहीं करेंगे। वस्तुतः उनका विपरीत घटित होगा। जितना अधिक हम अपने आध्यात्मिक स्वभाव को अपनाएंगे उतना अधिक हम स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। आप उनमें से कुछ पहले हम सीख चुके हैं और आपने दूसरों को भी इस पर महारत हासिल कर ली है। आप उन्हें उद्देश्य के रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं। जो आत्मा हमारी है, जो पहले हम पाठों को ये पहले सीख चुके हैं और जो अब दूसरी अनुभवों को हम सीख कर महारत हासिल कर ली है, अब अपने उद्देश्य के रूप में उसको हम व्यक्त कर रहे हैं। जैसे हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संजय संगति करते हैं, इनके माध्यम से हमारी आत्मा पहले भी इन चीजों को अनुभव कर चुकी है। लेकिन जो हर आत्मा का अपना एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को हम अपने द्वारा व्यक्त करते हैं। कोई ध्यान प्रचार में ज्यादा संलिप्त होता है, कोई पिरामिड बनाने में, इस तरह से अपने अपने कार्यों में अपने उद्देश्य के रूप में कार्य करते हैं। इस जीवन में सभी 22 पाठों को महारत हासिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पुस्तक में जो 22 पाठ जो है आत्मा के, उनको सारी चीजों में महारत हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि आत्मा जो है पिछले यात्रा में अपनी सब कई चीजों को सीख चुकी है। जानबूझकर या अनजाने में कई अवतारों से इन विषयों पर काम कर रहे हैं और प्रगति कर रहे हैं। जैसे आप सीखने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक प्रवास एक कक्षा के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आत्मा अनुभव सीखने की दिशा में आगे बढ़ती है, तो पृथ्वी पर प्रत्येक प्रवास एक कक्षा के रूप में ये हम रहकर इस अनुभव को सीखते हैं। आप सभी आत्माएं पाठों को सही समय पर सीखते हैं। जो भी हम अनुभव करते हैं सही समय पर हम उस चीज को सीखते हैं। जब सही समय आता है तो उस चीज की आत्मा को अनुभव प्राप्त होती है। दोस्तों, ये चीजें आप भी अनुभव करते हैं और इसको अच्छी तरह जानते हैं। और कोई भी सीख कभी खोती नहीं है। कोई भी सीख जो हम सीख जाते हैं, कोई भी अनुभव जो हम सीख लेते हैं, वो कभी खोती नहीं है। यद्यपि पाठ को पूरी तरह से छोड़ने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई भी हम पाठ आत्मा अपना सीखती है तो वो बीच में छोड़ने की बारे बता रहे हैं कि अनुमति नहीं है। कोई भी आत्मा जो अधूरा कार्य नहीं करती, वो पूरा पूर्ण अनुभव करती है। आपके पास सीखने के लिए ब्रह्मांड के पास पूरा समय है। इस पृथ्वी पर हमने जब जन्म लिया तो आत्मा को पूरा समय है इस ब्रह्मांड में अनुभव करने के लिए। दोस्तों, कोई भी आपके महान निर्माण में आपका उपहार जो है स्वतंत्र इच्छा है, जो फ्री विल है, जो हमारा चॉइस है, उसके बारे में तीसरे बता रहे हैं। दोस्तों, हर आत्मा का अपना उद्देश्य है। हर आत्मा अपना पाठ सीखने आती है। कुछ पहले सीख चुकी होती है, कुछ इस पृथ्वी पर हम सीखते हैं और अपने उद्देश्य के रूप में हम कार्य करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इन चीजों को हम तभी अनुभव कर पाएंगे जब हम नियमित रूप से प्रतिदिन ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सज्जन संगति करेंगे। और इन चीजों को जब नियमित रूप से करके अपने जीवन में अमल करेंगे तो इन चीजों को हम अच्छी तरह अनुभव कर पाएंगे। हर आत्मा अनुभव करना जानती है और करना चाहती है और अपने उद्देश्य पर कार्य करती है। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।